تھا اس کے منہ کے نوالے میں ہو گیا تھا۔ قرآن نے فرمایا ثعبان مبین، اتنا بڑا دہا جیسے فرعون کی محل جیسے اس کے منہ میں آ جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھتا ہے، دشمن تمہیں تعاقب کر رہے ہیں، اسی لاٹھی کو دریائے نیل میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو پانی پہ مارا تھا، یہ ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے اور نبیوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ پانی بھی پہچانتی ہے، پانی بھی جانتی ہے راستہ مانگنے والا کوئی دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ راستہ مانگنے والا موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ پانی دو پھٹوں میں بڑھ جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر جاتے ہیں۔ اب جب فرعون کے آدمی آیا، فرعون آیا، دیکھ کر کے تعجب ہوئی، یہ پانی اس میں ہے، پانی ادھر بیچ میں راستہ کیسے بن گیا؟ اگر سمجھدار ہوتا سمجھ جاتا کہ کس انسان سے ہمیں پنگا لے رہے ہیں، کس انسان سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ لیکن خدا جب عقل دیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ عقل کام نہیں کیا، سمجھدار ہوتا سمجھ جاتا کہ پانی کے بیچوں بیچ راستہ کیسے تیار ہو گیا، جس سے ہم دشمنی کر رہے ہیں وہ کوئی ہو سکتا ہے پہنچا ہوا فقیر ہے۔ اس لیے کہ نہ بادشاہ نہ کوئی فقیر زندہ ہے، نہ بادشاہ نہ کوئی فقیر زندہ ہے، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در رسول کا مگر ہر ایک فقیر زندہ ہے۔ نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در رسول کا مگر ہر ایک فقیر زندہ ہے۔ عقل ماری گئی، سمجھ میں نہیں آیا، اور دیکھا نہ تھا، کہا کہ چلو اب تو دریا ہم بھی پار کر جائیں گے۔ جیسے ہی دریا میں آگے بڑھایا اپنے دوستوں کو، یہ بھی چلا۔ جیسے ہی بیچ دریا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوا، اے دریائے نیل جلدی کر جلدی کر، اب پانی سمٹنا شروع ہو گیا، اور بیچ میں جاتے جاتے راستہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ فرعون اسی نیل دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ جیسے ہی مرا کنارے پہ آ گیا، لوگوں نے کہا رہے، اور جسم بہت زخامت تھی، جسم لمبا تازہ موٹا تازہ جسم کو لوگوں نے کہا چلو اس کو پھر سے دریا میں ڈال دو۔ اس وقت کے جو اس کے ساتھی تھے، جیسے ہی دریا میں ڈالتے پھر دریا سے باہر آ جاتا۔ اب لوگ پریشان کی، یہ تو پہلی مرتبہ ہے جب کسی انسان کو دریا میں ڈالا جا رہا، اپنے آپ ایٹومیٹک اوپر آ جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بد کلامی کی ہے، اس لیے دریا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اب اس کو آگ میں جلایا گیا۔ آگ میں جتنے ہی کراسن پیٹرول جو بھی اس زمانے کے اعتبار سے تھا موجود ڈالا، لیکن اس کی لاش کو کچھ ہوتا نہیں، جلتا نہیں۔ اب لوگ پریشان حیران، کرے تو کیا کرے، پانی میں ڈالے وہ بھی باہر آ جائے، لاش کو جلائے لکڑی ختم ہو جا رہی ہے، لاش کو کچھ ہوتا نہیں۔ اب لوگوں نے کہا انتم اپائے بچا ہے، مسلمانوں کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ اب کیا تھا، قبر کھود کر کے اس کو ڈالا، لیکن اتنا بڑا پاپی گناہگار تھا کہ اس نے قرآن میں اللہ ذکر کیا، کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تم لوگوں کا سب سے بڑا خدا۔ خدا سے جب اس نے آنکھ ملائی تھی تب بھی تو خدا نے کہا اے موسیٰ یہ خدا کہتا ہے فرعون لوگ آدمی نہیں بن پاتے ہیں، میں اس کی لاش کو عبرت کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگ سیکھے کہ کوئی اللہ کے برابری میں جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کی لاش کو، اس کے جسم کو زندہ رکھوں گا، اس کی لاش کو سلامت رکھوں گا، تاکہ لوگ عبرت لے، تاکہ لوگ اس سے ڈرے، تاکہ لوگ خوف خدا سے ڈرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کو قبر میں ڈالا گیا، قبر بھی تسلیم نہیں کرتی، اب لوگ پریشان، کرے تو کیا کرے، لاسٹ میں دریا میں ڈال دیا، کنارے لگا رہا۔ لیکن میں نے بتایا نہ دریائے نیل کی مچھلیوں نے اس کو کھانا پسند کیا، نہ مگر مچھوں نے۔ اب 1898 میں جو لاش کو ملی، فرانس کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جسے نام ہے ڈاکٹر موریس بوکائے، اس کی بارگاہ میں لایا گیا، اور لانے سے پہلے ہی کھلبلی پورے ورلڈ میں مچ گئی۔ مسلمان تو بغیر دیکھے ٹوکے کہہ رہے تھے یہ فرعون کی لاش ہے۔ اب اس کو پروف کرنا تھا، اس نے میڈیکل سائنس سے پروف کیا کہ اس کے جسم میں نمک جیسی کچھ دھاتو معلوم ہوتی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کو ڈوب کر کے دریا میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی لاش سلامت کیسے ہے؟ میڈیکل سائنس کے حساب سے انسان اتنا دن تک اس کی لاش باقی نہیں رہ سکتی۔ ہم جو مردے کو قبر میں دفنا کر آتے ہیں، کیا پتا 21واں دن پیٹ پھٹ کر انسان کے الگ ہو جاتا ہے،
और फिर वहाँ पे कीड़े मकोड़े जिस्म को खाना शुरू करते हैं और सिर्फ कुछ कुछ हड्डियाँ बच जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेडिकल साइंस के एतबार से सोचा ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है कि 3500 साल किसी की लाश सलामत हो और उसे दरिया में मरा हो, न मछली खाए न उसको मगरमच्छ खाए। अज़ीज़ान मिल्लत समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त में सऊदी अरब में एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में ये पहुंचा मोरिस बुकाय, उसने कहा एक लाश मिली है। मुसलमानों ने कहा तब क्या है? कहा उसको जानना है किसकी लाश है और वो लाश अब तक सलामत कैसे है। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लाश बाकी नहीं रख सकती, वो सलामत नहीं रख सकती। अब आप लोग कुरान में बताइए इसका जिक्र है। तब उलमाए कराम ने बताया हाँ कुरान में इसका जिक्र है कि अल्लाह ने फरमाया था ऐ फिरौन मैं तुम्हारी लाश को जिंदा रखूंगा। कब तक? क़यामत तक तुम्हारी लाश को जिंदा रखूंगा ताकि लोग तुम्हारी लाश को देखें और इबरत पकड़े। जैसे ही मोरिस बुकाय ने सुना कि इस्लाम में इसका जिक्र 3500 साल पहले ही जिक्र है, जिसको मैं आज प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, उसका जिक्र तो 3500 साल पहले ही कुरान में लिख दिया है, फौरन इस्लाम का कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाता है। यह है हमारा इस्लाम, यह है हमारा मजहब जो सर चढ़कर बोलता नजर आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन नहीं जानता 1969 में चांद पर पहला कदम रखने वाला पढ़े लिखे का मजमा है, सब लोग जानते होंगे। 1969 में चांद पे जो सबसे पहला कदम रखा था उस आदमी का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ही कुरान का मुताला करने की सोच रहा था, चांद पे पहुंचा था और चांद पर पहुंचने के बाद जैसे ही इस्लाम की खूबियों को पता चला, वो भी अब्दुर्रहमान नाम लेकर के अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान का दामन थामता नजर आया, इस्लाम का दामन थामता नजर आ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला इस्लाम में ऐसे और एक और बात बताता चलूं, माइकल जैक्सन, उसको कौन नहीं जानता, इतना बड़ा डांसर था कि उसकी एक थिरकने से लाखों अमेरिकी डॉलर तबाह बर्बाद हो जाया करते थे। उसको देखने के लिए हुजूम लाया करता था। वो जहां पे जाता एक जमे गफीर, एक पूरी मखलूक जमा हो जाया करती थी और उसके डांस में इतनी शक्ति थी, उसके डांस मानो जादू था कि लोग उसके दीवाना थे। बहुत फेमस हुआ, बहुत नाम कमाया, लेकिन उसे दिल को तसल्ली ना मिली। पैसा कमाया, शोहरत कमाया, किसी चीज की कमी ना हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माइकल जैक्सन जैसे डांसर ने भी जब दिल को सुकून ना हुआ, उसके भतीजे ने कहा रे क्या देखता है जिसे कहीं सुकून नहीं मिलता, अगर कुरान पढ़ लेता है, कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिल जाता है। कुरान पढ़ा, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया। बहुत बड़े बड़े नाम मेरे पास मौजूद है, लेकिन अगर मैं नाम ही गिनाता रह जाऊं तो मुझे सिर्फ और कुछ बातें कहने का मंशा है, मकसद है। मैं उसको बताने की कोशिश करूं कि अगर माएँ दुनिया की चाह ले, मुसलमानों की माएँ चाह ले कि मेरा बेटा भी कुछ बने, तो बाबा फरीद की माँ से सबक ले। सही है। बाबा फरीद जो छोटे हैं, अच्छा बच्चों का ये आलम होता है, यह हालत होती है, माँ बाप बच्चे की क्या ख्वाहिश है, क्या खाना पसंद करते हैं, ये माँ और बाप जान लेते हैं। बाबा फरीद की माँ है जो नमाज पढ़ने के लिए सिखला रही है, लेकिन छोटा बच्चा नमाज कैसे पढ़ेगा, बदमाशी करेगा। उसे लालच दीजिए। बच्चे से अगर कोई आपको काम कराना हो, पैसे की या कोई सामान की लालच दे, बच्चा ऑटोमेटिक काम आपको कर देगा। देखिए नसीहत है, इसमें एक नसीहत है। बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे, तो बाबा फरीद ने कहा नमाज पढ़ने से क्या फायदा है। बच्चा फायदे की फिक्र ज्यादा करता है, उसे रिजल्ट तुरंत चाहिए। तब बाबा फरीद की माँ ने कहा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो जो तुम्हारे खुदा है, जो मेरे खुदा है, वो तुमको शक्कर देगा, चीनी देगा। उनकी माँ जानती थी कि मेरा बेटा चीनी ज्यादा खाता है, मेरा बेटा चीनी से ज्यादा रगबत रखता है, इसलिए उस चीनी का नाम ले लिया। अब क्या था, बाबा फरीद जैसे ही नमाज का वक्त होता, बाबा फरीद जाते वजू करने के लिए जैसे ही जाते, ये बाबा फरीद की माँ मुसल्ला को उठाती और मुसल्ला बिछा देती और उसी मुसल्ला के नीचे एक
शक्कर की पुड़िया बना कर रख देती। जब बेटा वजू करके आता, नमाज पढ़ता, बेटा कहता माँ शक्कर कहाँ है, नमाज पढ़ लिया। माँ कहती बेटा मुसल्ला तो उठाओ। जैसे ही बाबा शक्कर मुसल्ला उठाते, शक्कर से भरा हुआ पुड़िया देखते, दिल इत्मीनान हो जाता। इसी तरह से फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, कई दिन हो गया। अब एक दिन का मामला ऐसा हो गया कि बाबा फरीद दोस्तों के साथ खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए। अब दूर ही थे कि अल्लाहु अकबर की सदा कानों में सुनाई देने लगी। अब बाबा फरीद नमाज को ताखिर करना पसंद नहीं करते थे। आवाज सुन लिया है, घर से दूर है और नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते हैं हाँ दरिया मिल जाता है, दरिया में वजू भी कर लिया। वजू करने के बाद अब घर आते हैं, कहा माँ नमाज पढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। अब माँ कह रही है बेटा जा वजू करके आओ। बेटे ने कहा माँ मैं तो वजू कर लिया हूं। अब माँ कशमकश के आलम में, माँ समझ रही आज मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। या अल्लाह आज मेरी लाज बचाना तेरा काम है, वरना एक माँ रुसवा हो जाएगी, वरना एक माँ बेटे के सामने लाचार हो जाएगी, माँ का राज खुल जाएगा और माँ बेपर्दगी में हो जाएगी। बेटे कहेंगे तू ही लालच देती थी। अजीजान मिल्लत इस्लामी, माँ ने कहा बेटा जा वजू करके आ। बेटे ने कहा नहीं माँ मैं वजू कर लिया हूँ, रास्ते में दरिया मिला, मैं उसी में वजू कर लिया हूँ। अब रोजाना का मामूल था कि वजू करने जाते थे, माँ मुसल्ला बिछाती थी, उसी मुसल्ला के नीचे शक्कर रख देती थी। लेकिन वजू करके आए हैं, मुसल्ला कर रहे हैं, मैं खुद ही बिछाऊंगा, मुसल्ला भी बिछा लिए और नमाज अदा कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ बाबा फरीद जैसी अजीम हस्ती नमाज में है, दूसरी तरफ उसकी माँ दिल पे हाथ रखकर रो रो कर दुआ कर रही है, मौला बारे इलाहा परवरदिगारे आलम आज एक माँ की लाज रख लेना, आज एक माँ की इज्जत का सवाल है। अगर आज इसने नमाज पढ़ लिया और कहीं मुसल्ला उठा लिया और उसको शक्कर नहीं मिला, माँ तो बेटे के सामने रुसवा हो जाएगी, माँ तो पूरी दुनिया के सामने रुसवा हो जाएगी। माँ की इज्जत का सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो माँ रो रो कर दुआ करती है, अय बारे इलाहा, अय परवरदिगार आलम इस मासूम सी बेगुनाह माँ को लाज रख लेना, इस बेचारी को बचा लेना, इसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अय परवरदिगार आलम यहाँ तक लाना मेरा काम था और आगे संभालना तेरा काम है। माँ लास्ट में क्या कहती है, अय खुदा यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब यहाँ से आगे क्या होगा वो तेरा काम है, अब तू समझ ले मैं तेरे हवाले करती हूँ। और इधर बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे हैं, तैयार पढ़ रहे हैं, दुआए मसूरा सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद अब दुआ कर रहे हैं, दुआ भी खत्म हो गई है। माँ की दिल की सांसें बेचैनी में बदल रही है, माँ की आहट बता रही है आज बेटे से चोरी पकड़ी जाएगी, आज बेटे के सामने रुसवा हो जाऊंगी, आज बेटे के सामने माँ की इज्जत का सत्यानाश हो जाएगी। लेकिन बारे इलाहा परवरदिगार आलम ऐसा कारसाज है कि माँ की दुआ को खाली नहीं जाने दिया, माँ की इज्जत को बदनाम होने नहीं दिया, माँ की इज्जत को रुसवा होने से बचा लिया। बाबा फरीद ने जैसे ही दुआ करने के बाद मुसल्ले को उठाया है, अब जो रोजाना शक्कर की एक पुड़िया रहा करती थी, अब शक्कर का एक हौज बना हुआ है। बाबा फरीद कहते हैं अय माँ रोजाना नमाज पढ़ा करता था, एक छोटी सी पुड़िया में शक्कर हुआ करती थी, आज पूरा हौज ही बना हुआ है। माँ कहती है बेटे रोजाना मैं शक्कर दिया करती थी, तब का आज किसने रखा है, तो जिसके लिए नमाज पढ़ता था आज उसने खुद रख दिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मदरसा रूहुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मदरसा रूहुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। पता चला अगर माए नेक हो, नेक काम से अपने बच्चे को आगे लगाए, उसमें एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कशमकश की दुनिया में किसे फिक्र है, किसे उतनी सहूलत है, कौन इतनी सवारने की कोशिश करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम है जो पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहे हैं, ये आज के बादशाह भी हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कल के इस्लामी बादशाह आपने देखा होगा
کہ سائنسدانوں نے ویज्ञानिकों ने बहुत पापड़ बेलने के बाद, बहुत पैसा खर्च करने के बाद हवाई जहाज को बनाया, लेकिन आज तक और सुबह क़यामत तक ऐसी कोई जहाज नहीं बनाया और ना अब तक आया है जिसमें कोई 6 लाख सवार होते हो, इंसान तो इंसान, जानवर भी चरिंद परिंद सवार होते हो। और आज के जो एरोप्लेन है उसमें जैसे ही इंसान बैठता है वहां पे कुछ लेडीज आती हैं और अर्ज करती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपने अपने बेल्ट से पेट को बांध ले, कमर को कस ले ताकि कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई जहाज में तकनीकी खराबी आ जाए तो ये सामने विंडो देख रहे हैं ना, इसी विंडो को जो शीशा रहता है शीशे को तोड़ देना और पैराशूट पहना दिया जाता है। पैराशूट ये है, इसको पहन करके छलांग लगा देना है, आसमान दुनिया से छलांग लगाएं के जमीन पे चल जाएंगे। ये आज का एरोप्लेन है जो चढ़ते ही कोई गारंटी नहीं ले रही है। आप बैठे तो जरूर है पटना से दिल्ली जाने के लिए, लेकिन दिल्ली पहुंच जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाज कब कैसे बिगड़ जाएगी इसकी कोई गारंटी साइंसदानों के पास, वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पैराशूट दिया जाता है, इमरजेंसी विंडो को दिखाया जाता है, ये इमरजेंसी विंडो है, इसी को तोड़ करके पैराशूट पहन करके आप नीचे छलांग लगा देना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस्लामी हुकूमत का ओ बादशाह का नाम आपको बता रहा हूं। और आज के जो एरोप्लेन है उसमें पेट्रोल है, इंजन है, ईंधन है और एक पायलट है। तब इतना सारा खर्च करने के बाद, लंबी तैयारी के बाद एक एरोप्लेन आसमान और जमीन के दरमियान फजाओं में खिलाओं में तैरा रहा है और अपने आप को कहता है मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तख्ते सुलेमान जैसे ही चलता था उसको चलाने वाला कोई नहीं था, उसको उठाने वाला कोई नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते थे, वो हवा तख्त को उठा करके जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम जाना चाहते थे वहां पहुंच जाया करते थे। और जो आज की एरोप्लेन है उसमें कोई गारंटी नहीं, आप पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे, मंजिले मकसूद तक आपकी रसाई होगी या ना होगी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो तख्त था उसमें जो भी बैठता था उसकी फुल गारंटी थी। जो जहां जाना चाहता है बेखतरो हजर जहां जाना चाहता है वहां आसानी के साथ पहुंचा दिया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 6 लाख लोगों का इंतजाम अगर कोई कर पाता है, हवाओं से जो काम कोई ले पाता है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इस्लाम ने ऐसे ऐसे नबी को दिया, इस्लाम ने ऐसे ऐसे वली को दिया, आप उसकी तारीफ पढ़ेंगे आपके ईमान में ताजगी हो जाएगी। साइंसदानों का आप बहुत नाम लेते हैं, अरे इस्लामी साइंसदान बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि साइंस तो ईंधन से चलाती है, साइंस तो पेट्रोल से चलाती है। मेरे खाजा पिया की अजमेरी की जो जूती होती है वो लकड़ी में इतनी ताकत आ जाती है कि लकड़ी का मुकाबला पेट्रोल और पायलट नहीं कर पाते हैं। बस इन्हीं तर्जुमे के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। खुद की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े होकर सलातो सलाम।